Welcome all of you. Today we will be having a discussion on the 16th Finance Commission, which is the latest Finance Commission. और इसके backdrop में we would also discuss what is a Finance Commission, why it is constituted, and why it is very important from the perspective of sharing funds between the center and the state. Okay, so starting with the 16th Finance Commission, which is a 5-member body. That is 4 members plus the chairman. The current commission is headed by Mr. Arvind Panagria, who is the ex-member of Niti Aayog. Niti Aayog, all of you must be aware, is the think tank of the government, and Niti Aayog has replaced the planning commission, or rather the 5-year plans which we had earlier, right? So now the task of planning is assigned to this body, which is the Niti Aayog. Okay, so coming to the 16th Finance Commission, which is a 5-member body. Before that, let's come to what is a Finance Commission. What is a Finance Commission? See, Finance Commission is a constitutional body, okay, and it comes under Article 280 of our Indian Constitution. This constitutional body, okay, the members are appointed by the President of India, okay. So, अब ये जो 16th Finance Commission है, ये इसलिए भी हमारे लिए relevant है because it is expected to work in the direction of कि local bodies में जो spending हो रही है उस पे हमें work करना है, right? तो इसका सबसे बड़ा जो expectation है, expected to increase the funds allocated to, or rather the funds allocation to local bodies. Local bodies, as all of you must be aware, we are talking about the panchayats and the municipalities as per your 73rd and 74th amendment which were constituted, right? ये जो 16th Finance Commission है, it was formed in the year 2023 and it is expected to give its recommendations by October 2025. तो October 2025 में ये अपनी recommendations submit करेंगे, ठीक है? And जो इनकी recommendations होगी उसके basis से 1st April 2026 onwards the work would be started, right? और ये जो है ये applicable रहेगा for 5 years. That means we can say a finance commission is reconstituted every 5 years. But अब ये है कि इनकी जो recommendations है, it is about what? तो recommendations definitely है about the sharing of funds between center and the states, as I said you earlier. But over here, these recommendations legally binding है? नहीं है. They are not legally binding. ठीक है? Legally binding नहीं है ये government पे, जो divisible pool से जो funds allocation होती है, it must be or it has to be according to the amount or the percentage recommended by this commission. Okay? अब ये थोड़ा सा एक brief idea करने के बाद let's go back to our जो हम सबसे पहले discussion जो मैंने start किया था यहाँ पे कि इस साल हम क्या expectation कर रहे हैं कि local bodies को funds allocate ज़्यादा हो. इसका reason क्या है? इसका सबसे बड़ा reason ये है currently हमारी जो public spending है
उसका सिर्फ 3% लोकल बॉडीज को दिया जा रहा है। पब्लिक स्पेंडिंग का सिर्फ 3% लोकल बॉडीज आर यूजिंग और रादर कंज्यूमिंग, वेयर एज अ कंट्री लाइक चाइना वहां पे 50%, रादर 50% ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग जो है इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द लोकल बॉडीज, राइट। सो ये डिफरेंस हमें थोड़ा सा नोट करना है दैट ये जो 3% है और चाइना का हम देख रहे हैं 550%, तो दिस इज समथिंग वी गॉट टू वर्क अपॉन। व्हाई? बिकॉज लोकल बॉडीज जो है दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज टू द पीपल, राइट। सो जब सेंटर के पास देखो मेजॉरिटी ऑफ टैक्सेस सेंटर के पास आ रहे हैं, बी इट योर इनकम टैक्स, बी इट योर कॉर्पोरेट टैक्स और द जीएसटी, सो जो मैक्सिमम टैक्सेस सेंटर कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, तब उससे जो सेंटर जो टैक्स शेयर कर रहा है स्टेट्स के साथ, तो लोकल बॉडीज को इनफ फंड्स आर नॉट एट देयर डिस्पोजल, राइट। सो दिस इज एन एरिया वी आर एक्सपेक्टिंग दैट यू नो एफसी और दिस न्यू कमीशन वुड बी वर्किंग अपॉन। नाउ अब थोड़ा सा फिनेंस कमीशन के बैकड्रॉप में चलते हैं, कि इसका काम क्या है और किस तरीके से फंड्स डिवाइड होते हैं और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग फंड्स, व्हाई सम स्टेट्स आर गेटिंग मोर फंड्स एंड सम स्टेट्स आर गेटिंग लेस फंड्स। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। नाउ अब फिनेंस कमीशन के बारे में डिस्कस करते हैं, कि इस बॉडी का फंक्शन क्या है एंड हाउ द फंड्स आर बीइंग डिवाइडेड। एज आई सेड यू अर्लियर ऑल्सो, आर्टिकल 280 talks about the finance commission, ठीक है, which is a 5-member body appointed by the president. Okay, उसके बाद it talks about dividing the net tax revenue collected by the central government amongst the various states. ठीक है, सो जो फंड का डिवीजन होगा, एंड मार्क दिस इज द नेट टैक्स रेवेन्यू। ओके, सो नेट टैक्स रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता है गवर्नमेंट का, जीओआई का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको किस तरीके से हम डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड करेंगे। अब एक टर्म आता है वर्टिकल डिवोल्यूशन। व्हाट इज दिस वर्टिकल डिवोल्यूशन? दिस इज नथिंग बट जो सेंट्रल टैक्सेस का जो फंड्स होता है कलेक्शन, जिसको हम कहते हैं डिविजिबल पूल, ठीक है, इसका कितना परसेंटेज स्टेट्स को एलोकेट होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टेट्स, मतलब जो जितने टैक्सेस है, टैक्सेस मीन्स द नेट टैक्स रेवेन्यू है, उसका कितना परसेंट स्टेट्स को एलोकेट होगा, इसको कहते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। नाउ वी कम टू हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्या है? अब ये जो स्टेट्स को फंड्स मिले हैं, ये पैसा किस तरीके से स्टेट्स में डिवाइड होगा, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। वर्टिकल इज फ्रॉम सेंटर टू द स्टेट्स, कि स्टेट्स के लिए कितनी एलोकेशन हो रही है, और वो जो एलोकेटेड फंड्स है वो किस तरीके से डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड होंगे, एंड दैट इज ऑन अ बेसिस ऑफ अ फॉर्मूला विच आई विल बी डिस्कसिंग लेटर। ठीक है, तो अब वो टोटल जो कॉर्पस है वो किस तरीके से डिफरेंट स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। एंड वर्टिकल इज जो सेंट्रल टैक्सेस का जो पूल है उसमें से कितना परसेंट स्टेट को जाएगा। नाउ जो 13 फाइनेंस कमीशन था,
the 13th Finance Commission उसने रेकमेंड किया था कि डिविजिबल पूल का 32% स्टेट्स को जाएगा. 13th Finance Commission was headed by Vijay Kelkar, 14th was headed by Y.B. Reddy. 14th Finance Commission ने रेकमेंड किया था 42% एंड 15th ने रेकमेंड किया था 41%. ठीक है, यू कैन सी द अमाउंट इज बीइंग इंक्रीजिंग. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, एज आई सेड यू अर्लियर, ये जो परसेंटेजेस है ये लीगली बाइंडेड नहीं है. ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर टू फॉलो इट. ठीक है, सो इतना परसेंटेज नहीं भी होता है. इट्स नॉट दैट कि 41% है तो 41 ही गया है फंड्स. अब सेंटर से स्टेट्स को ये पैसा जाता है. तो यहां पे मैंने एक चीज मेंशन की थी, नेट टैक्स रेवेन्यू. अब हम पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू और नेट टैक्स रेवेन्यू क्या है, और ग्रॉस में से कौन से फंड्स ऐसे हैं जो कि इस डिविजिबल पूल के बाहर रहते हैं. दैट मीन्स द गवर्नमेंट इज नॉट इंक्लूडिंग दैट इन द पूल. उससे होता क्या है, नेट टैक्स रेवेन्यू हमारा रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन. ये जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये टोटल टैक्स कलेक्शन है. ठीक है, लेकिन जो मैंने बोला डिविजिबल पूल है, या रादर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेट टैक्स प्रोसीड्स या नेट टैक्स रेवेन्यू. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, ग्रॉस में से वी वुड बी सब्ट्रैक्टिंग द सेस, द सरचार्ज एंड टैक्स कलेक्शन में जो मनी इन्वॉल्व है, मतलब उस पूरे प्रोसेस को कैरी आउट करने में जो गवर्नमेंट का पैसा खर्चा हुआ है. ये दोनों चीजें, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स रादर, ये तीन कंपोनेंट्स हम जब रिड्यूस करते हैं जीटीआर से, व्हाट वी गेट इज द नेट टैक्स. और ये नेट टैक्स है, इस नेट टैक्स के ऊपर दिस नेट टैक्स इज योर डिविजिबल पूल. इसमें से जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था 41%, 42% जो रिकमेंडेशंस है वो इस पूल से निकलती है. ठीक है, अब द पॉइंट कम्स कि ये सेस और सरचार्ज क्यों रिड्यूस किया गया है. देखो, ये बहुत मेजॉरिटी परसेंटेज ऑफ टैक्सेस है, सेस एंड सरचार्ज. तो इससे होता क्या, अगर हम इसको रिड्यूस कर देते हैं तो ये जो अमाउंट है दिस रिड्यूसेस, राइट. सो जो फंड एलोकेशन होगी इट वुड बी ऑन अ स्मॉलर अमाउंट. ठीक है, स्मॉलर अमाउंट का परसेंटेज होगा. और सेस और सरचार्ज में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है वो काफी हैवी है. ठीक है, मोर देन 25% है. ठीक है, अब ये सेस और सरचार्ज क्या है? सेस और सरचार्ज ये दोनों ही टैक्स ऑन टैक्सेस है. These are additional taxes which is charged on an individual's income. ठीक है, लेकिन सेस क्या है, ये फिक्स्ड है. ठीक है, irrespective of your income you are charged. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 3% है बट इट इज फॉर अ पर्टिकुलर कॉज, राइट. अगर एडुकेशन सेस है या हेल्थ सेस है या स्वच्छ भारत सेस है, ठीक है, तो ये जो परसेंटेज है इरिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम यू आर चार्ज दिस सेस. ठीक है, तो लेकिन इसका क्या है, जिस कॉज के लिए सेस कलेक्ट किया गया है ये उसी कॉज के लिए यूज होगा. जैसे अगर एजुकेशन सेस है इट विल बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन ओनली. हेल्थ है तो हेल्थ सेक्टर में यूज होगा. सरचार्ज क्या है? सरचार्ज इज अगर आपको तब देना है जब आपकी इनकम एटलीस्ट 50 lakhs एंड अबव है. ठीक है, तो ये इनकम पे डिपेंड करता है. ठीक है, और सरचार्ज में ऐसा कुछ नहीं है. अगर सरचार्ज कलेक्ट किया है गवर्नमेंट ने, ये यू कैन नॉट से कि वो पर्टिकुलरली कोई कॉज के लिए ही होगा. इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट कंप्लीटली कि वो मनी वो किस तरीके से यूज करती है. लेकिन सेस के साथ क्या है, जिस कॉज के लिए उसको कलेक्ट किया गया है इट हैज टू बी यूज्ड इन दैट एरिया ओनली. ठीक है, तो ये एक हल्का सा आइडिया आपको मिल गया
कि नेट टैक्स क्या है और ग्रॉस टैक्स से क्या कंपोनेंट्स हम रिड्यूस करते हैं टू अराइव एट दिस. ओके, सो ये नेट टैक्स हमारे काम का था. सो लेट्स गेट बैक टू आवर डिस्कशन. सो अभी तक हमको आइडिया आ गया है कि फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है. वो फंड्स डिवीजन बताते हैं, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से हॉराइजॉन्टल डिवोल्यूशन होगा. नाउ द हेडिंग वुड बी क्राइटेरिया फॉर हॉराइजॉन्टल डिवोल्यूशन. This is based on a formula given by the FC. और ये जो फॉर्मूला है इसमें कुछ चीजें हमें देखनी है. डिपेंडिंग ऑन व्हाट फैक्टर्स ये डिसाइड होगा किस स्टेट को किसने फंड्स एलोकेट किए जाएंगे. सबसे इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन. नेक्स्ट इज योर ज्योग्राफी. थर्ड इज योर फर्टिलिटी लेवल. एंड फोर्थ इज योर इनकम लेवल. ठीक है, मेजरली ये फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे वी डिसाइड कि फंड्स किस स्टेट्स को ज्यादा रिक्वायरमेंट है और किसको कम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. नाउ अब हॉराइजॉन्टल डिवोल्यूशन को लेके देयर इज क्लैश बिटवीन स्टेट्स. यू नो, कुछ एक एग्जांपल अभी हम डिस्कस करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट्स लाइक कर्नाटका एंड तमिलनाडु. ठीक है, मैंने बताया था देखो मेजॉरिटी ऑफ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते हैं. ठीक है, वो कौन कौन से टैक्सेस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है. सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड योर इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी. ठीक है, तो आपको आइडिया है मेजॉरिटी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कलेक्ट कर रही है. स्टेट के पास जो टैक्सेस आते हैं, बीट योर एग्रीकल्चर या फिर स्टैम्प ड्यूटी या फिर लैंड रेवेन्यू जो भी है, लिकर टैक्स जो भी आता है, स्टेट का ये कहना है कि मैक्सिमम जो हमको जो टैक्सेस आते हैं सेंटर की तरफ से, अगर कम टैक्सेस आते हैं तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द पब्लिक सर्विसेज. ये रीजन है फ्रिक्शन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम सर्विसेज, चाहे वो पब्लिक एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पुलिस हो. तो ये सारी सर्विसेज किसको देनी है? स्टेट्स को देनी है. ठीक है, स्टेट्स आर टेलिंग कि अगर वी डोंट हैव फंड्स, बिकॉज हमारी जो कलेक्शन है, देखो जीएसटी में 17 टैक्सेस सब्ज्यूम हुए थे. ठीक है, जीएसटी इज अ टैक्स विच सब्ज्यूम 17 टैक्सेस. ठीक है, तो जो इनिशियल कलेक्शन होता था स्टेट्स का बिफोर जीएसटी वाज लार्जर. ठीक है, तो जीएसटी आने की वजह से वो रिड्यूस हो गया है और स्टेट्स के पास काफी कम टैक्सेस है. तो स्टेट इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन द सेंटर फॉर द फंड्स. तो अगर फंड्स वहां से कम आ रहे हैं तो स्टेट्स का कहना है वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज. हाउ डू वी मैनेज दिस? राइट, इतनी सर्विसेज हम कैसे मैनेज कर पाएंगे विद द अमाउंट ऑफ फंड्स विच इज इनएडिक्वेट अकॉर्डिंग टू देम. सो ये तो सेंटर और स्टेट्स का फ्रिक्शन है. अब स्टेट्स लाइक कर्नाटका एंड तमिलनाडु, व्हाट दे आर सेइंग इज दैट कि अगर हम सेंटर को 1 रुपीज कंट्रीब्यूट करते हैं टू द सेंट्रल एक्सचेकर, तो उसके रिटर्न में हमको 29 पैसे आ रहे हैं फ्रॉम द सेंटर. वेयर एज अ स्टेट लाइक बिहार, ठीक है, अगर वो सेंटर को 1 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसके अगेंस्ट दे आर गेटिंग मोर देन 7 रुपीज. ठीक है, सो वाई दिस इज सो? वाई द सेंटर इज फेवरिंग स्टेट्स लाइक बिहार? ठीक है, इवन यूपी का इट इज लाइक 2.4 और 2.5 अगेंस्ट 1 रुपी. अब क्वेश्चन ये है, देखो स्टेट्स लाइक कर्नाटका एंड तमिलनाडु, दे हैव बेटर गवर्नेंस. ठीक है, और बिहार जैसे स्टेट में फॉर बेटर गवर्नेंस
funds are being allocated, right, to create a kind of parity. Okay, so ये आपस में states का है, we are not getting into this, but the question is that जो 16 Finance Commission जो हमारा आज का topic था, जिसके support में हमने ये थोड़ा सा discuss कर लिया Finance Commission, तो the idea is that कि local bodies को अपने को ज़्यादा funds देने हैं, public spending में उसका percentage बढ़ाना है, ठीक है. कारण क्या है, देखो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ बोलो, डेवलपमेंट बोलो, वॉट एवर इट इज, उसके लिए उसके लोकल बॉडीज को हैज टू बी इन पावरफुल होना पड़ेगा, ठीक है. कारण क्या है, बिकॉज सी एज महात्मा गांधी राइटली रिमार्क्ड, इंडिया लिव इन इट्स विलेजेस, राइट. सो अपने को लोकल बॉडीज को सशक्त करना है और वो करने के लिए वी हैव टू गिव देम एडिक्वेट फंड्स, ठीक है. तो this can only happen when the role of the Finance Commission becomes all the more important in that. Okay, so with this we would sum up this discussion. Thank you guys, see you soon.